So let us start with the solution. This is your find I of t by pole zero method was asked in this examination only for 5 marks. Okay, so it means again we have to find out the time domain quantity. अब ये न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे मैंने आपको कल के जो पेंडिंग न्यूमेरिकल में आपको बताया था दैट यू हैव टू सबट्रैक्ट द गिवन क्वांटिटी फ्रॉम 1, and this basically is the mathematical adjustment which is generally done when we find that the power of s in numerator and denominator is same. Okay, it may not be done in the control system, but it may be, right? So to avoid that particular complexity or to make the simplicity, we generally do the mathematical adjustment in the equation which you have to follow in the university or sectional examination. Okay, so let us do that. So what I have to do, I have to subtract the given function from 1 to reduce the degree of numerator and denominator, rather numerator. Okay, so I have to subtract the given function from 1. Now what I get is okay, it means I am taking s square plus 2s as LCM and then s square plus 2s minus s square minus 4s minus 3. So here s square get cancelled, you get minus 2s minus 3. It is equal to, I am taking minus common, so I am getting 2s plus 3 and from denominator s common, so therefore I am getting s plus 2s, s plus 2. So this is that value which I had to use to get the I of t. So now what is the value of I of t? Therefore, what is the value of I of s, new function? So I of s is equal to, ध्यान से देखना मेरी तरफ. Now this is very, very important. Now this is your given function which we have subtracted from 1. And the result of this subtraction is minus of 2s plus 3 upon s into s plus 2. Okay, so now I just change the positions of the given function and the function which we are finding. What I do, I just take this function on the right hand side and this function here. Are you getting my point? So when I do this, यानी यहाँ से ये function मैंने उठाया माइनस वाला टर्म और मैं यहाँ लेके गया ये वाला टर्म, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये जो माइनस वाला टर्म है जैसे मैं अंदर ले आता हूँ तो ये माइनस का क्या होगा, प्लस होगा. तो व्हाट आई गेट अल्टीमेटली, I of s is equal to, please check this, 1 plus 2s plus 3 upon s into s plus 2. Is it clear with this point? Yes sir. फिर से रिपीट करता हूं, यहां पर मैंने just to avoid this complexity in the degree, like the degree of numerator which is 2 and denominator is also 2, which both the degrees of numerator and denominator are same, to avoid that confusion, to make the number of poles greater than number of zeros, or in other words we can say over here the number of poles, number of zeros are equal to number of poles. So to avoid that particular situation, what we did, we have just subtracted the given function from 1. That is the mathematical adjustment which is done to make the numerical simple. Okay, so when we do so, we get this as a result. So what I have to do, I have to replace this particular quantity with this quantity. What is that quantity? As this quantity. So it means I have to replace this particular quantity with this quantity. It means my new I of s is this. अब इसको अगर हम लोग फिर से सॉल्व करें तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, यू विल गेट द गिवन फंक्शन, you will get the given function. So ultimately what you are doing, you are just finding the I of t of the given. Sir. Yes Atish, tell me. सर इसके लिए तो जो s स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 ही चाहिए, तभी हो सकता है. s स्क्वायर का
एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट वैल्यू हाँ एस स्क्वायर की 1 चाहिए हाँ 1 चाहिए तभी होगा सर। हाँ आतिश आपका कहना सही है। और मैंने आपको जैसे लेक्चर के शुरुआत में कहा था कि जो कल का पेंडिंग न्यूमेरिकल है उसमें कोएफिशिएंट आपका 2 आने की वजह से उसके ऊपर डिस्कशन मेरा चल रहा है। वैसे मुझे मोरिल मैडम ने ये बताया कि सर अगर आपने 1 की जगह यहाँ पर आपने 2 लिया, जैसे यहाँ पर मैंने 1 लिया है ना, तो 1 की जगह आपने अगर 2 लिया तो उसका जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा वो 2 डेल्टा टी रहेगा। यहाँ पे आपका मैं आपको आगे बताता हूँ ना, आपका आतिश आपका डाउट मैं बस इस न्यूमेरिकल के एंड में लेता हूँ, ठीक है। तो चलो ये आपका फंक्शन आ गया, दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज नथिंग बट द गिवन फंक्शन। ओके, तो मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग 2 कॉमन, so what I get is s plus 1.5 यानी 3/2, 3/2 यानी 1.5, ठीक है। और ये रहेगा आपका s इंटू एस प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे हालांकि न्यूमेरिकल बहुत सिंपल बनते जा रहा है आपका। ओके, तो अब व्हाट आई डू, अब मुझे क्या करना है देखो ध्यान से। हाँ, मुझे न्यूमरेटर में s इक्वल टू 1.5 एक जीरो मिल जाएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में मुझे 2 पोल्स मिलेंगे, s इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू माइनस, यानी वो तो नंबर ऑफ पोल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ 0। ओके, नाउ आई हैव टू फॉर्म आई हैव टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो व्हाट आई डू, 2 बराबर a अपॉन s प्लस b अपॉन s प्लस 2। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, I have to find the values of A and B. So for that purpose, what I do, I just use this. Okay. Okay. So I have to find the values of A and B. Now let us plot the zeros and poles. अब यहाँ पर बताइए, how many zeros are present? Anyone? How many zeros are present? 2 1 1. 2 So what is that zero? S equal to minus 1.5 minus minus 3 1. by 2. ठीक है, ओके, -3/2, ठीक है। तो -1.5, अब -1.5 आपको प्लॉट करना है। अब ये -1.5 कहाँ पर रहेगा, -1 और -2 के बीच में। तो ये एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ। ओके, अब जीरो जो रिप्रेजेंट करते हो आप लोग सर्कल से करते हो, और उसको नाम आपने जैसे हम लोग देते हैं z। ओके, पोल्स, कितने पोल्स है यहाँ पर, 2। पहला कौन सा है, s इक्वल टू 0। दूसरा कौन सा है, s इक्वल टू -2। तो s इक्वल टू 0 यानी ये हुआ आपका पहला पोल P1, और ये हुआ आपका दूसरा पोल P2। यहाँ पर भी मैं बना के रख देता हूँ, दिस इज P2, दिस इज Z, दिस इज P1। अब ये हो गया आपका पोल जीरो डायग्राम, दिस इज पोल जीरो डायग्राम। अब आपको ये एडजस्टमेंट करने के बाद यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी ये जो मुझे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है दैट फाइंड ए, और उसके बाद वाला जो डायग्राम है इट फाइंड्स बी। ओके, सो लेट अस फाइंड ए, लेट अस फाइंड ए। अब ए फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या हो, कैन एनीवन टेल मी, ए फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा। H into ZP1 लिख लिया। अपॉन, अच्छा लिख लिया क्या मैंने, अरे क्या बात। ओके,
तो ZP1, अब ZP1 यानी कौन सा डिस्टेंस हुआ? इस Z से लेके P1 तक का डिस्टेंस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, Z से लेके P1 तक का डिस्टेंस। ये पॉइंट कहां पर है? 1.5 पे। हाँ, ये ध्यान में रखें, 1.5 पे, और ये आपका P1 0 पे है, तो ZP1। अब यहाँ पर आपका फैक्टर क्या है? H का वैल्यू क्या है? 2। यहाँ पर हम लोग लिख के रखते थे H = 2। ओके, चलो बताते जाइए। 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, रियल है, रियल पैरामीटर यस गाइस, टेल मी, Z से P1 तक का डिस्टेंस कितना है? Z से P1 तक का डिस्टेंस कितना है? जल्दी बताइए। 1.5 -1 -1.5 चल ठीक है। So Z /0 yes, it is 1.5 एंगल 0। एंगल 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एंगल आपका कहां से कहां तक का रहेगा? यहां से यहां तक का, या फिर आपने यहां से शुरू किया ना, यहां से शुरू किया ना, इस पॉइंट से, तो ये जो एंगल रहेगा आपका इस पॉइंट से यहां तक का, ये एंगल है ना। समझ में आ रहा है आपको? यहां से यहां तक का। ओके, मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं, चलो ठीक है। तो ये एंगल कितना हुआ आपका? 0, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है वैसे भी, तो ये एंगल हुआ 0। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। 2 एंगल 0 P2 से P1। 2 एंगल 0 यस, हाँ, अब मैं यहाँ पर कैसे ड्रॉ करूँ? चलो ठीक है, ये ऐसा ड्रॉ कर लिया है। सो दिस इज 2 एंगल 0। 2 get cancelled. What is the value of A here? What is the value of A here? 1.5 1.5. 1.5 That's all. चलो ठीक है, अब दूसरा B के लिए प्लॉट करते हैं। That finds B. Z. H into P2 Okay. H into P2. H into Z minus Z minus P2 Z minus P2 नहीं है Z बच्चा, minus- P2 है ना, और ये P1 P2 है, यानी P1 से P2 तक का डिस्टेंस। ये जो लाइन बीच की निकाल रही हो आप कुछ भी कह सकते हो। ओके, ZP2। अब ZP2 यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस। सर माइनस, हाँ बोलिए। सर माइनस है ना? हाँ, तो ये है आपका 1.5, ये है पॉइंट -2, तो ये क्या होगा? 0.5 बराबर है। बताइए जल्दी, बच्चा पार्टी जल्दी। सिर्फ 2-4 स्टूडेंट्स ही बात करते हैं, बाकी स्टूडेंट सो गए हो क्या? मुझे सर Z माइनस 0.5 ZP2 तक का डिस्टेंस बताइए। 0.5 0.5। और यहाँ पर एंगल कितना रहेगा? एंगल कहां से मेजर करोगे? एंगल आप यहां से मेजर करोगे, इस Z से आप एंगल ले जाओगे और उस P2 की तरफ रखोगे। अब ये जब एंगल आप इस तरीके से मेजर कर रहे हो, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। 180 180 डिग्री। सो दिस इज सर 180। हाँ बोलिए। सर Z हाँ, माइनस P2 है, हाँ, Z माइनस P2 है, Z माइनस P2 है, Z माइनस Z P2 P2 लिखा है। हाँ, हाँ तो ZP2 ही है ना, डिस्टेंस बिटवीन Z एंड P2। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक। हाँ ठीक है। ओके, P1 टू P2 का डिस्टेंस कितना है? इस P1 से लेके P2 तक का डिस्टेंस कितना हुआ? -2 -2, यानी वो हुआ 2 एंगल 180, क्योंकि एंगल फिर से कैसे मेजर करोगे? इस पॉइंट से, बराबर है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो यहां से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस, अब वो डिस्टेंस कितना होगा? फिर से 180 डिग्री। So 2 angle 180. So 2 get cancelled. What is the value of P here? 0.5 Huh?
सर 0.5 0.5 0.5, ठीक है. सो नाउ देयरफॉर चलो आई ऑफ एस लिखते हैं जल्दी से फास्ट. आई ऑफ एस 1+2. अच्छा, यहाँ पर आपका 2 वाला पैरामीटर चलेगा. गलती से फिर से मत लिख देना यहाँ पर कि भैया 2 आ गया सर. गलती से भी वहां पर मत लिखना, क्योंकि ऑलरेडी आप 2 यूज कर रहे हो ऊपर में. और जब आप लोग नेटवर्क प्रिपेयर करते हो तो ध्यान से प्रिपेयर करना, जैसे आप लोग बाकी मैथ सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हो उसी तरीके से नेटवर्क भी आपको प्रिपेयर करना है. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1.5 डिवाइडेड बाय s प्लस वैल्यू ऑफ b इज 0.5 डिवाइडेड बाय s प्लस 2, राइट? s प्लस 2. अब आप ये मत पूछना कि सर ये 2 कहाँ गया. 2h इक्वल टू 2 करके यूज हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है. सो दिस इज 1 प्लस ये कंप्लीट ब्रैकेट is replaced by this a and b values. Okay, now take inverse Laplace transform. अब ध्यान से देखना, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज आई ऑफ टी. यहाँ पर जनरली स्मॉल आई लिया जाता है, बट न्यूमेरिकल में उन्होंने कैपिटल आई दिया था, या फिर क्या कौन सा दिया है, कैपिटल आई दिया था, इसलिए मैंने कैपिटल आई लिया है, बट जनरली स्मॉल आई लिया जाता है टाइम डोमेन क्वांटिटी. ओके, सो आई ऑफ टी इक्वल टू inverse Laplace transform of 1 is delta t, and as per like Moril ma'am's like the solution, the inverse Laplace transform of what I said, 2. If I have to find the inverse Laplace transform of 2, so it would be 2 delta t as per her solution. But still I have not agreed to that, and I had to confirm it from the books, so it is better, right? So okay, so now inverse Laplace transform of 1 is delta t plus inverse Laplace transform of 1.5 upon s. Can anyone tell me? 1.5 e raised to the power. अरे e कहाँ से आएगा भैया, आती 1.5 only 1.5 only 1.5. Inverse Laplace transform of 1 upon s plus 2 e raised to power a minus power minus 2t. Yes, e raised to power minus 2t. That's all. So this is your final answer. Okay, so now all of you please write down this. Any doubt in this question?